Good morning, all of you. In today's class of the surface chemistry, we will discuss about the different type of particles on the basis of their size in the solution and the different components of the colloidal solution. And we will also discuss about the classification of the colloids. So let's start our today's lecture. Is the different type of particles on the basis of their size in the solution. The particle may be the crystallite particles, they may be the colloidal particles, they may be the suspension particles. What are the crystallite particles? The particles whose size in between the range of 1 to 10 angstrom are called as the crystallite. For example, urea, sugar, salt. When these substances are mixed in the water, then after mixing, they give the homogeneous mixture, and the size of the particle in that solution is in the range of 1 to 10 angstrom. So such type of particles called as the crystallite particles, while the other type of particles whose size is between the 10 to 1000 angstrom are called as the colloid. For example, the starch, gelatin, hemoglobin, which is present in our blood, they forms the colloidal solution. They form the colloidal solution because in the solution their particle range is 10 to 1000 angstrom, while the suspension particles are those particles whose range is greater than 1000 angstrom, means in the solution they are present in that particular range, means they are present in the range that is the greater than 1000 angstrom, so they called as the suspension. The crystallite particles, as we already told, when they are mixed, like the urea, sugar, salt, when they are mixed in the water, they form the homogeneous mixture. Means their particles are present uniform in the uniform way throughout the solution. From the surface to the bulk, throughout they are present in a uniform way, and they form the homogeneous mixture. Similarly, the colloidal particles, they form the heterogeneous mixture, and the suspension particles also form the heterogeneous mixture. The colloidal particle and the suspension particle, when they are added in the any of the solvent, they give the heterogeneous solution. They give the heterogeneous solution, means their particles are not present uniformly. As you can see in the diagram, these particles going and get settled towards the bottom, means they are not present uniformly throughout the solution, means the solution is the heterogeneous one. The suspension particles, as we already told, they also form the heterogeneous mixture, means the mixture are of two type, that is the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. Which type of particles gives the homogeneous mixture? The crystallite particles. Which type of particles gives the heterogeneous mixture? आपके colloidal and the suspension particle. और homogeneous mixture कौन देंगे? आपके crystallite particles. heterogeneous mixture कौन देंगे? आपके colloidal particle और the suspension particles. ऐसे आपको ध्यान रखना है. और आपसे पूछा जाए कि 1 to 10 angstrom particle के size वाले particles कौन से होते हैं, तो what you will say, the crystallite particles. आपसे पूछा जाए 10 to 1000 angstrom साइज के पार्टिकल वाले कौन होते हैं, आप कहेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स. और ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉन साइज वाले पार्टिकल्स कौन से होते हैं, आप क्या कहेंगे? दीज आर दी सस्पेंशन पार्टिकल्स. नेक्स्ट वन, द क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल्स आर such type of particles which can pass both through the filter paper, ordinary filter paper, and also can pass through the SPM, means the semi permeable membrane. मीन्स ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएंगे. लेकिन जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, दे कैन pass only through the ordinary filter paper and they cannot pass through the semi permeable membrane. How can we prove it? As we all know, the blood vessels are the semi permeable membrane, and the hemoglobin present in the blood, which is flowing in the blood vessels, that hemoglobin is a colloidal particles. Means hemoglobin cannot pass through the blood vessels, means cannot pass through the semi permeable membrane. Otherwise the hemoglobin comes out itself from the semi permeable membrane. तो आपका जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जब वो फ्लो करता है, ये हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स हमने शो किए हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर, देखो ये फ्लो कर रहे हैं, ये अपने आप ही जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर अपने आप बाहर नहीं आ सकते, इसके थ्रू पास नहीं हो सकते. सो दैट इज एन एडवांटेज फॉर वी पीपल्स एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो. And the suspension particles are those which cannot pass through the ordinary filter paper and also cannot pass through the semi permeable membrane. And next property of these type of particles are the crystallite particles. They cannot be seen by the naked eyes. हम उनको naked eyes से नहीं देख सकते.
द कोलाइडल पार्टिकल्स आल्सो कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, इनको भी हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। While the suspension particle they can be seen by the naked eyes। हम सबसे पहले देखते हैं अपने क्रिस्टलाइड और कोलाइडल पार्टिकल्स को। आप दोनों कंटेनर के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो इन दोनों कंटेनर के अंदर आपने क्या देखा, व्हेन वी पास द लाइट, when pass the light from these two different solution, in the first of the solution आपने देखा जब लाइट आपने पास की, even on passing the light we cannot observe any type of the particle in the left hand side container। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखो कंटेनर है, उसके अंदर जब हमने लाइट पास की, even after that we cannot observe anything। while in the second case देखो राइट हैंड साइड में जो है, जब लाइट पास हुई तो आपने देखा लाइट की स्कैटरिंग हो गई। लाइट की क्या हो गई बोलो, स्कैटरिंग हो गई, क्योंकि पार्टिकल का साइज स्लाइटली बिगर हो गया। मींस जो पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो कंटेनर है उसके अंदर जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स के द्वारा बना हुआ सॉल्यूशन है। मींस इसीलिए जो आप नेक्ड आइज से भी उसको नहीं देख पाए, और उसके बाद इवन लाइट जाने के बाद लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं कर पाए आपके वो पार्टिकल्स, कौन, क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स। और सेकंड कंटेनर में आप देख पा रहे हैं, उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब आपने लाइट पास की तो वो जो पार्टिकल है उनका साइज क्योंकि थोड़ा बड़ा था, हमने पढ़ा था अभी 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन, और इस वजह से वो क्या करते हैं, जब लाइट पास की तो लाइट की स्कैटरिंग हो गई। देखो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल्स को आफ्टर पासिंग द लाइट, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाले कंटेनर में लाइट पास करने के बाद भी हम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, नेक्ड आइज से भी नहीं देख पाए और लाइट पास करने के बाद भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए। मींस क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी seen by the naked eyes and also cannot be observed on passing the light through it, while the colloidal particles are those particles which cannot be seen by the naked eyes but they can be observed by passing the light through it, because they can cause the scattering of the light, they causes the scattering of the light, while the suspension particles are those particles which can be seen by the naked eyes। For example, in that particular case, when we mix two of solution in each other, there occurs the formation of the precipitate। precipitate formation means the formation of the suspension here। यहाँ पे suspension बन गए हैं, तो मीन suspension को हम अपनी naked eyes से क्या कर पाए, observe कर पाए, seen कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे component in the colloidal solution। मीन्स component means जब हम दो टाइप के पार्टिकल्स को आपस में मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो जो दो टाइप के पार्टिकल्स हैं उनको हम किस नाम से पुकारें। लाइक इन केस ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर, लाइक इन केस ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाएं एंड दे गिव द होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम दो कंपोनेंट को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर ना मिले, हिट्रोजीनियस मिक्सचर मिले, तो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो आपके सस्पेंशन सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा। लेकिन फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटली वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। हम आपको फिर से बता दें, जो आपके ट्रू सॉल्यूशन थे उसके अंदर जो दो कंपोनेंट थे उनको आप कैसे कैसे किस किस नाम से आप उनको पुकारते थे, आपने उनकी डेजिग्नेशन क्या रखी थी। द कंपोनेंट इन द ट्रू सॉल्यूशंस आर द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, the substance which are present in less amount in moles in the true solution called as the solute, and the substance which is present in more amount in moles in the true solution called as the solvent। आप वहां पे solute और solvent वर्ड यूज करते थे। लेट्स सी यहाँ पे हम क्या नाम रखेंगे इन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनके। तो सिमिलरली लाइक दैट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, द कोलाइडल सॉल्यूशन विल आल्सो हैव द टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। और जो आपके कोलाइडल केमिस्ट्री जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, जो हम ये बातें बता रहे हैं, द फाउंडर ऑफ दैट कोलाइडल केमिस्ट्री इज द टी ग्रैहम। अब हम बात करते हैं उन दो कंपोनेंट की। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द डिस्पर्स्ड फेज लाइक द सोल्यूट इन केस ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, एंड द सेकंड टाइप ऑफ सब्सटेंस, second type of the component of the colloidal solution, that is the dispersion medium like the solvent in case of the true solution। So how will you define the dispersed phase? The substance which is present in small amount, which is present in less amount in moles, like the solute in case of the true solution, is called as the dispersed phase। आप उसे क्या कहेंगे, dispersed phase कहेंगे। Now what is the definition of dispersion medium? The substance which is present in large amount in moles in colloidal solution like that of the solvent in case of the true solution is called as the dispersion medium। आप उसे dispersion medium कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं गैस इन लिक्विड। अभी हम जितने भी डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन है आपके पास, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो एग्जांपल हम देख लें। फॉर एग्जांपल जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्लाउड्स, इनके अंदर क्या है, गैस इन लिक्विड।
गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है? गैस इन लिक्विड है, इन का मतलब लिक्विड इन मोर अमाउंट, एंड द गैस इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। तो मोर अमाउंट वाले को आप क्या कहेंगे? डिस्पर्शन मीडियम। और लेस अमाउंट में कौन है गैस? वो आपका कौन हो गया? डिस्पर्स फेज। सिमिलरली इन द अदर डायग्राम यू कैन सी that is the boot polish, that is the liquid in solid, means solid is present in more amount and the liquid is present in less amount. So means liquid is a disperse phase and the solid is the dispersion medium here in case of the boot polish. Now we will discuss about the different type of the colloidal solution depending on the physical state of the dispersion phase and the dispersion medium. Means there are the possible 8 type of system, but in case of the true solution, as we already discussed, there are 9 type of system. वो हम यहाँ पर भी देखेंगे वो कौन से 9 टाइप के सिस्टम है। हम ये भी देखेंगे कि उन 9 टाइप के सिस्टम में से एक सिस्टम कौन सा है जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में पॉसिबल नहीं है। सो लेट प्रोसीड्स टुवर्ड्स दिस डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम। जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, दे हैव द टू कंपोनेंट, वन इज द डिस्पर्स फेज, अदर वन इज द डिस्पर्शन मीडियम। एंड वी विल आल्सो सी अबाउट द, नाउ वी विल आल्सो डिस्कस हियर अबाउट द टाइप। हम टाइप भी देखेंगे अलोंग विद सम एग्जांपल। तो आपके जो टोटल आपके सिस्टम बन सकते हैं, टोटल जो पॉसिबल सिस्टम हो जाने चाहिए, दीज मे बी द 9 सिस्टम, जैसे हमने सीरियल नंबर में लिख दिया 1 to 9। और वो 9 सिस्टम कौन से हो सकते हैं, उसमें हम क्या करें? देखो डिस्पर्स्ड फेज हम क्या ले सकते हैं? मान लीजिए हमने सॉलिड ले लिए, देखो सॉलिड 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 हमने 3 टाइम्स लिखा, लाइक लिक्विड हम ले लें, लाइक गैस हम ले लें। अब क्या क्या मिक्स करें? देखो जो सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, मींस इफ द सॉलिड इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन व्हिच विल बी प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। सॉलिड लेस अमाउंट में रहेगा, लेकिन हम उसको किस में ऐड करें? वी मे ऐड the solid which is present in less amount, which is in the form of the dispersed phase, we can add it in another phase. That phase may be the solid, that phase may be the solid, that phase may be the liquid, that phase may be the gas. Means we now have the 3 system. देखो सॉलिड को जब हम डिस्पर्स फेज में लेते हैं, तो सॉलिड को डिस्पर्स फेज में लेते हुए हम 3 टाइप के सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि डिस्पर्शन जो मीडियम है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, वो आपका गैस भी हो सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ द लिक्विड, इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, मींस अगर लिक्विड लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो तो हम 3 सिस्टम फिर से बना सकते हैं। मींस कब? जब लिक्विड को हम किस में मिक्स करें, कौन ज्यादा अमाउंट में हो? सॉलिड, मींस लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। जो हम पहले बोलते हैं वर्ड लिक्विड इन सॉलिड, जैसे मैंने आपको बोला, देखो फिर बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड, मींस जो हम पहले वर्ड बोलते हैं दैट इज द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, दैट हियर कॉल्ड एज द डिस्पर्स फेज। और अदर जो हम बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड है किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर है, मींस वो सॉलिड लार्ज अमाउंट में है, तो दैट इज द डिस्पर्शन मीडियम। लिक्विड इन लिक्विड means both disperse phase and the dispersion medium are liquid. Liquid in gas means liquid in less amount and gas in more amount. Similarly अगर हम disperse phase किसको ले लें? गैस को ले लें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जानी चाहिए? That means gas in solid, gas in liquid and gas in gas. But as we already know, gas system is always be the homogeneous mixture. It can never be the heterogeneous mixture. वो heterogeneous mixture नहीं होता, but the nature of the colloidal solution will always be the heterogeneous mixture. तो इसीलिए जो last system है हमारा gas system, it is not possible here because it will always be the homogeneous mixture. तो इसीलिए हमने कहा कि the in case of the colloidal solution the possible system are 8 system. वो upper 8 हो गए, 1 to 8 वाले possible हैं, और जो 9 वाला है gas के system that is not possible. और हम इनकी टाइप देखते हैं। सबसे पहले हम वो नाम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, वो टाइप विच जो हम मेन आपके मेनली पढ़ेंगे हमारे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो मेन कौन होगा? फर्स्ट वन इज द सोल। सोल क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड मींस आपके लिक्विड इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉलिड इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, और इन अदर वर्ड वी कैन से सोल इज दैट टाइप ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। देखो कभी डेफिनेशन आ जाती है, जो भी हम टाइप लिख रहे हैं, जो भी नाम आएगा, और वो आपसे डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, सोल इज दैट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच, तो आप कैसे लिखें? तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको सोल को डिफाइन करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? द सोल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड इज कॉल्ड एज द सोल। सिमिलरली इसके जो एग्जांपल है वो क्या होंगे? आपके एग्जांपल इनके इंक हो गया, आपके कोलाइडल गोल्ड, स्टार्च, पेंट, मडी वाटर, व्हाइट इन एग, आर्सेनिक सल्फाइड, AgCl इन वाटर, जो भी आप ये डिफरेंट जो नेम है, ये आपके सारे क्या है? दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द सोल।
हम आपको एक चीज और बता दें कि आपके इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल याद रखने बहुत जरूरी है। एग्जाम में आप क्या आ सकते हैं कि इंक, इंक क्या है, इंक के बारे में आपके टिक करना आ जाएगा, जो अभी हम डिफरेंट टाइप लिखने वाले हैं कि वो सोल है, जेल है, इमल्शन है, ऐसे पूछ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि जो इंक है वो क्या है, वो लिक्विड इन सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन गैस है, सॉलिड इन गैस है। मिस वट एवर में बी द आंसर, वो आंसर कुछ भी हो सकता है, आपको करेक्ट वन को चूज करना है। तो सोल, सोल क्या है यहाँ पे, सोल इज द लिक्विड इन सॉलिड। इंक क्या है, इंक है लिक्विड इन सॉलिड। कोलाइडल गोल्ड क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, एंड सो ऑन, दिस ऑल आर दी सोल। तो एग्जाम्पल आपको हर एक टाइप के याद रखने ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेल। सो जेल जो होता है दैट इज जस्ट रिवर्स दैट ऑफ द सोल। सोल का जो जस्ट रिवर्स होता है उसे आप क्या कहते हैं, जेल। मींस सॉलिड इन लिक्विड। मींस द जेल क्या हुआ, जेल की डेफिनेशन क्या है, द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड इज कॉल्ड एज द जेल। उसे आप जेल कहेंगे। और एग्जांपल क्या, जैसे बटर, चीज, जेलीज, कर्ड, बूट पॉलिश, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द जेल। नेक्स्ट इमल्शन। इमल्शन क्या है, जिसमें दोनों ही लिक्विड हो। means the colloidal solution in which both dispersed phase and the dispersion medium are liquid called as the emulsion, like milk, medicine, hair cream, these all are the example of the emulsion. Next proceed towards one by one from upside to the downward direction. Means first case where both dispersed phase and the dispersion medium are solid, that called the solid sol, उसे आप solid sol कहते हैं। तो what are the solid sol, how will you define it? The colloidal solution in which both dispersed phase and the dispersion medium are solid is called as the solid sol. And example are ruby glass, means gold in glass, alloy, black diamond, gemstones, and so on. These are the example of the solid sol. Next we take about the solid form. What is solid form? The colloidal solution in which the dispersed phase is solid and the dispersion medium is gas is called as the solid form. And the example are biscuit, cake, bread, वोल्केनिक ऐश, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके दौरान, द लावा, द फोम रबर, आपने देखा होगा काफी सारे जो जो आपके जो आप बिछाते हैं जिसके ऊपर आप बैठते हैं, फ्रेश के ऊपर, आपको फ्लोर के ऊपर जो आप सिट करते हैं, तो जब आप उसको यूज कर लेते हैं, बेड के ऊपर आप यूज कर सकते हैं उसको, एंड मेनी अदर प्लेसेस पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। कॉर्क, द पुमिस स्टोन, these all are the example of the solid form. Next type is the foam, or you can say the froth. The colloidal solution in which the dispersed phase is liquid and the dispersion medium is gas is the foam or the froth. And the example are foam froth, beaten egg, whipped cream, the soap, leather. These all are the example of the foam or the froth. The next one is the smoke, or you can say the solid aerosol. What are solid aerosol? The colloidal solution in which the dispersed phase is gas and the dispersion medium is solid are called as the solid aerosol. And example are dust, sooty air, fume. These are the example of the solid aerosol. हम आपको फिर से याद दिला दे, जो बातें बोल रहे हैं कि आपसे पूछा जाए कि solid aerosol कौन है, तो हम कहेंगे ये किसका एग्जाम्पल, एग्जाम में लिखा मिल सकता है, these are the gas in solid, तो that called here gas in solid, आप इसको solid in gas नहीं कहेंगे। मींस which is present in less amount, which is the dispersed phase, उसको आप पहले बोलेंगे, और जो डिस्पर्शन मीडियम है उसको आप, उसका नाम आप बाद में बोलेंगे। तो अब यहाँ पे कैसे बोलेंगे, गैस इन सॉलिड इन केस ऑफ द सॉलिड एरोसोल। आपसे एग्जाम में पूछा जाए डस्ट क्या है, सूटिन एयर क्या है, तो आप कहेंगे कि ये गैस इन सॉलिड है। बोलो क्या गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट लिक्विड एरोसोल, the colloidal solution in which the dispersed phase is gas and the dispersion medium is liquid called as the liquid aerosol. And example are fog, mist, clouds, insecticide spray। जब हम घर में स्प्रे करते हैं और जाके जो हमारे फार्म हाउसेस होते हैं वहां पे हमारे जितनी भी हम वहां पे वेजिटेशन करते हैं उसके ऊपर हम इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए जो स्प्रे करते हैं, तो जब जो स्प्रे करने के बाद जो इन्वायरमेंट के अंदर जो इंसेक्टिसाइड आ जाता है वो किस फॉर्म में आता है, लिक्विड एरोसोल के फॉर्म के अंदर आ जाता है। और लास्ट सिस्टम हमारा पॉसिबल ही नहीं, दैट इज द गैस गैस सिस्टम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल ऑलवेज गिव्स द homogeneous mixture, it will never gives the heterogeneous mixture. So the possible 8 system of the colloidal solution जो है वो आपके सामने है, ये हमने वन बाय वन डिस्कस किए। अब हम इनको एक अदर फॉर्म में आपके सामने लेके आएंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोलाइड, आप उसको आइडेंटिफाई करें। बोलो इंक क्या है, ये इंक दिख रहा है एग्जाम में, जैसे मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे इट इज ए सोल, इट इज ए सोल, ये सोल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो पीछे आप देख सकते हैं सोल क्या है, इट इज द लिक्विड इन सॉलिड। बोलो क्या है लिक्विड इन सॉलिड, तो आप ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे,
आपके ये सोल है, बोलो क्या है ये सोल, और सोल क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। अदर एग्जांपल देखिए मडी वाटर, ये क्या है, ये भी सोल है। सोल क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। अदर पेंट, ये भी क्या है, सोल का एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड। अदर आप व्हाइट ऑफ एग देखें, ये क्या है, सोल, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट आप देखें बटर, ये क्या है, जेल। अभी मैंने आपको बताया था जेल इज जस्ट रिवर्स दैट ऑफ द सोल। सोल क्या था, सोल आपका क्या था, जिसके अंदर आपके लिक्विड इन सॉलिड था, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। चीज जेल है, तो ये भी क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। कर्ड क्या है, जेल, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। गुड पॉलिश क्या है, दैट इज जेल, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, आपसे एग्जाम में इसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं लाइक मिल्क। जैसे आपको दिख रहा है ये मिल्क मैन है, कैसे मिल्क को लेता है फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द आपके डिफरेंट एनिमल्स, दैट मे बी द काउ, दैट मे बी द बफेलो, दैट मे बी द गोट, दैट मे बी द कैमल, जिसका मिल्क जो पर्सन्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो उसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, उसको पीने के लिए यूज करते हैं। और मिल्क क्या है, मिल्क इज एन इमल्शन, ये एक इमल्शन मींस लिक्विड इन लिक्विड, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। हेयर क्रीम जो यूज करते हैं ये एक इमल्शन है, मेडिसिन जो यूज करते हैं वो इमल्शन है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाउड। क्लाउड क्या है, लिक्विड एरोसोल। आके इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये क्या है, लिक्विड एरोसोल। डस्ट इन एयर, ये क्या है, ये सॉलिड एरोसोल का एग्जांपल है। बिस्किट क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट केक, केक क्या है आपके, सॉलिड फॉर्म। ब्रेड, ब्रेड क्या है जो हम घर में यूज करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म। ब्रोंज, जैसे जब आप कोई भी टूर्नामेंट होती है उसके दौरान जब आप प्राइज विनर बन जाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल आपको मिलता है, तो ये क्या है, ब्रोंज, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड मींस सॉलिड सोल। फोम रबर क्या है, दैट इज सॉलिड फॉर्म। टाइप ऑफ सोल देखेंगे अब हम कि डिफरेंट टाइप के सोल कौन कौन से हो सकते हैं, दैट मे बी द हाइड्रोसोल और यू कैन से द एक्वासोल, एज द नेम रिफ्लेक्ट हियर, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो मींस वाटर मींस द डिस्पर्शन मीडियम हियर विल बी द वाटर। आपका डिस्पर्शन मीडियम तो वाटर ही होगा, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है हाइड्रो मींस वाटर, एक्वा मींस वाटर। इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर and the dispersed phase may be the solid, liquid or the gas, whatever may be their nature, then it is called as the hydrosol or the aquasol. Means hydrosol or aquasol are those type of colloidal solution in which the dispersion medium is water, whatever may be the nature of the dispersed phase. वो आपके डिस्पर्स फेज कोई भी हो सकता है, वो कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस हो सकता है, इस टाइप का कि जब आप उसको वाटर के अंदर डालें वो जाके कोलाइडल सॉल्यूशन बना दे, ना कि सस्पेंशन और ना ही ट्रू सॉल्यूशन बनाए, तभी आप उसको क्या कहेंगे कि वो बन गया हाइड्रोसोल और द एक्वासोल। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है इमल्शन, जो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। चीज जो एक जेल है, किसका एग्जांपल है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। आपके क्लाउड्स, लिक्विड एरोसोल, ये किसका एग्जांपल है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल। और इन सभी केसेस में आपके डिस्पर्शन मीडियम कौन है, वो वाटर है। वो कौन है आपका, वाटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल एज द नेम सजेस्ट, द डिस्पर्शन मीडियम इज एल्कोहल एंड whatever may be the nature of the dispersed phase, वो कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस हो जो अल्कोहल के अंदर मिक्स करने के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन दे दे। Now there is an important statement here, that is the colloid is not a substance. colloid कोई substance नहीं है, but it is a state of the substance. अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर अगर एग्जाम में आपके आ जाता है, हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि colloid is not a substance but is a state of substance because कोलाइड इज ए हिट्रोजीनियस सिस्टम। कोलाइड जो है वो आपका एक हिट्रोजीनियस सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच द वन सब्सटेंस इज जस्ट डिस्पर्स्ड एज ए वेरी फाइन पार्टिकल इनटू द अनदर सब्सटेंस, तो उसकी एक स्टेट बन जाती है। ये कोई सब्सटेंस नहीं है, इट इज जस्ट ए स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इस टाइप से आप इसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन देयर द नेचर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हम देखेंगे द कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो आपके जो कोलाइड होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। दे मे बी द मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, दे मे बी द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और मे बी द एसोसिएटेड कोलाइड, और वो एसोसिएटेड कोलाइड भी हो सकते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे और समथिंग इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे, और इनको बहुत अच्छे से आप देखेंगे क्योंकि इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारे आगे आने वाला चैप्टर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन की जो छोटी से छोटी बात है जो हम डिफाइन करेंगे उसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। As the name suggests here, multimolecular collide. Multi means many,
मोलिक्यूल्स का मोलिक्यूल मींस मल्टी का मतलब मेनी मोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से जो कोलाइड बनता है वो आपके कोलाइड्स कहलाएंगे, वो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड कहलाएंगे। मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो पार्टिकल कोलाइड के नहीं, वो पार्टिकल कोलाइड के नहीं, क्योंकि वो उससे कोलाइड हमने पढ़ा था आज ही बिल्कुल स्टार्ट में। जो पार्टिकल्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं, 1 to 10 एंगस्ट्रॉन वाले आपके क्रिस्टलाइड कहलाते हैं, 10 to 1000 वाले ही कोलाइड हैं। तो मींस मल्टी मोलिकुलर मींस मैनी पार्टिकल जो आएंगे वो कौन होंगे, वो ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल होंगे, 1 to 10 एंगस्ट्रॉन वाले पार्टिकल होंगे। तो मींस 1 to 10 एंगस्ट्रॉन वाले स्मॉलर पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से अगर लार्ज साइज के पार्टिकल बन जाएं तो आप उसको कहते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। मींस द कोलाइड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ large number of small particles through the van der Waals forces or either by cooling or by changing the solvent are called as the multimolecular collide. For example, आपकी जो जेल सोल, सिल्वर सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो हम सॉल्यूशन बनाए, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन बनाए, तो आपके क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देखें, देखो पहले जो पार्टिकल्स हमने शो कर रखे, देखो इस कंटेनर के अंदर ये स्मॉल टाइप के देखो जो पार्टिकल्स है, ये कोई और नहीं, इनका साइज 1 to 10 एंगस्ट्रॉन है। और हमने डिफरेंट वेज अप्लाई किए, जैसे फॉर एग्जांपल कूलिंग या चेंजिंग द सॉल्वेंट एंड एनी अदर वे भी हो सकता है, जिससे आपने देखा अब की बार वो जो काम हमने किया कूलिंग या चेंज ऑफ सॉल्वेंट जो भी हमने किया, उसके बाद आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं दे गेट एग्रीगेटेड। ये नहीं कि सारे पार्टिकल ही इकट्ठे हो गए, मींस द सम पार्टिकल्स गेट एग्रीगेटेड, सम अदर पार्टिकल आल्सो गेट एग्रीगेटेड, नाउ वी गॉट द समथिंग लार्ज टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो लार्ज टाइप के पार्टिकल यहाँ पे मिल गए, ये पार्टिकल्स का साइज क्या है, 10 टू बोलो क्या है, 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन है अब इनका साइज जो यहाँ पे बन चुके हैं। देखो ये जो पहला कंटेनर है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है बोलो वो किस साइज के हैं, वो है आपके पास, देखो ये यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर के अंदर 1 to 10 एंगस्ट्रॉन साइज है। और जो सेकंड जो कंटेनर है इसके अंदर बोलो पार्टिकल का साइज क्या है, 10 to 1000, सो कॉल्ड एज द कोलाइड। और व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड, दीज आर द मल्टी मोलिकुलर कोलाइड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्योंकि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से ही ये बने हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। अब नेक्स्ट आप नेम सजेस्ट करें, आप देखें उसके अंदर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, एज द नेम सजेस्ट मैक्रो, मैक्रो मींस लार्ज, लार्ज पार्टिकल है। लार्ज कौन होते हैं, कोलाइड से बड़े साइज के पार्टिकल कौन होते हैं, दीज आर दी सस्पेंशन, मींस ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं, आपके सस्पेंशन। हाँ, एक चीज मेरे को यहाँ पे एकदम ध्यान आ गई कि जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, वो जरूरी नहीं कि वो आपके एंगस्ट्रॉन की फॉर्म में पूछे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे आपने देखा कि जो पार्टिकल का जो साइज है, कोलाइड के पार्टिकल का जो साइज है वो होता है 10 एंगस्ट्रॉन से लेके फॉर एग्जाम्पल 1000 एंगस्ट्रॉन, जैसे हमने लिख दिया। और आप सभी जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 10 मीटर, देखो 10 मीटर हम लिख दें। और यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में देखो 10 मीटर। मीटर की फॉर्म में आए तो आप ये जवाब दे देंगे, मींस कितने मीटर बन गए बोलो आपके, 10 की पावर माइनस में देखो ये तो 9 मीटर। और यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, आप इसमें से देखो 1000 था तो 10 की पावर माइनस में 7 मीटर, देखो मीटर की फॉर्म में, ऐसे सेंटीमीटर की फॉर्म में भी आ सकता है। या आपसे ये पूछे एंगस्ट्रॉन, आपके नैनोमीटर की फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। तो ये देखो 10 की पावर माइनस 9 मीटर को आप क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से लेके कहां तक आपके ये आ जाएगा 10 नैनोमीटर, सॉरी 100 नैनोमीटर। क्योंकि आपने क्या किया, देखो ये 10 से अगर हम 10 इसको कैंसिल करते हैं तो ये क्या आ गया 10 की पावर माइनस में 9, और 10 की पावर माइनस 9 मीटर को आप क्या कहते हैं, नैनोमीटर। बच गया कितना वहां पे देखो 100। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम में कई बार जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या वैसे आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो आपसे जब टिक करना पड़ जाए और ये कहें व्हाट आर दी कोलाइडल पार्टिकल्स, वो किस रेंज के होते हैं, तो जो ऑप्शन है उसके अंदर लिखा मिल सकता है आपके 10 एंगस्ट्रॉन टू 1000 एंगस्ट्रॉन, तो ये भी ठीक है। अगर वो मीटर की फॉर्म में आए तो आपको दिख रहा है 10 की पावर माइनस 9 मीटर टू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। नैनोमीटर की फॉर्म में पूछे तो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर ऐसे लिखा मिल जाए, वो भी ठीक है। मींस यूनिट कन्वर्जन करना आपको जरूर आना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको वहां पे जब हम साइज के बारे में बता रहे थे तो उस टाइम पे ये स्किप हो गई थी, तो मैंने अभी आपको बता दी आपके आज के लेक्चर के अंदर ही। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइड के बारे में, दैट इज द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। और जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया भी
कि बड़े साइज के पार्टिकल वो कौन होंगे, ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉन वाले पार्टिकल्स थे हमारे पास। हमने क्या किया, कोई भी वे लिया, कोई भी रास्ता अपनाया और हमने क्या किया, उस बड़े साइज के पार्टिकल का डिसोसिएशन कर दिया। और डिसोसिएशन इस टाइप से करें कि हमारे पास अब कोलाइडल पार्टिकल्स आ जाएं। कोलाइडल पार्टिकल्स मीन जैसे अभी मैंने अभी सारी रेंज आपको बताई, मतलब 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन साइज के पार्टिकल मिल जाए हमें। तो बड़े पार्टिकल के ब्रेकडाउन से छोटे साइज के पार्टिकल मिले, और इतने छोटे भी ना मिले कि वो आपके कौन बन जाए, आपके क्रिस्टलाइट टाइप के पार्टिकल आ जाए, अदरवाइज वो तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। हमें बनाना कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, हमें बनाने कोलाइड ही है। तो बड़े साइज के पार्टिकल के डिसोसिएशन से अगर कोलाइड बन जाए तो आप उससे कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मींस द कोलाइड which are formed by the breaking or the dissociation of the large size particle, means large size means the particle whose size is greater than 1000 angstrom, means वो सस्पेंशन है। और कैसे, either by adding the solvent, जैसे आपने ये डायग्राम देखा, यहाँ पे ये सस्पेंशन पार्टिकल है, ये बड़े साइज के जो पार्टिकल हमने दिखा रखे हैं ये बोलो कौन है, सस्पेंशन है। मान लीजिए ये ऐसे पार्टिकल है कि इसके अंदर अगर हम सोलवेंट डाल दें, सॉल्वेंट डालते ही साथ क्या हुआ, जो बड़ा पार्टिकल था उस बड़े पार्टिकल के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल एक दूसरे से देखो थोड़े दूर हो गए। और दूर होने के बाद अब जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो पार्टिकल अब हमें मूव करते हुए दिख रहे हैं, इनका देखो साइज आपको पहले से अब थोड़ा छोटा मिल गया, लेकिन अब ये जो रेंज है इसकी वो क्या है, 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन। मींस अब ये कोलाइड बन गया। बोलो कौन बन गया, कोलाइड, क्योंकि ये सॉल्वेंट डालने से बना है। और यहाँ पे वर्ड हमने नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लायोफिलिक। अभी हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। लायो का मतलब है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब है अट्रैक्शन। मतलब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे, उन सस्पेंशन के पार्टिकल्स के अंदर जब हमने सॉल्वेंट डाला तो उन पार्टिकल्स ने सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन दिखा दी, और अट्रैक्शन दिखाने से ही वो पार्टिकल्स अब एक दूसरे से दूर हो गए और उन पार्टिकल के बीच में सॉल्वेंट आ गया, और इसीलिए तो वो दूर हो पाए। मींस आपके इसीलिए ऐसे कोलाइड को आप कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। मींस ये वो कोलाइड होते हैं, द कोलाइड whose particle shows more attraction with the solvent than in between their own particles। लायो यानी कोलाइड, कोलाइड पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन है उससे ज्यादा अट्रैक्शन ये कोलाइड के जो पार्टिकल्स अब बन गए हैं ये सॉल्वेंट के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो मींस सॉल्वेंट के ऐड करने से भी आपका कोलाइड बन जाता है। लेकिन ये जो कोलाइड यहाँ पे बना, इस कोलाइड का एक स्पेशल नाम भी होगा, आप इसे कहेंगे दैट इज द लायोफिलिक कोलाइड। ये लायोफिलिक कोलाइड यहाँ पे बन गया। दूसरा वे क्या हो सकता है, दूसरा वे है और बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन। फॉर एग्जाम्पल आप इन सभी को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड ही कहेंगे। Means the collide which are formed by the breaking or the dissociation of the large size particle, that is the suspension particle, either by adding the solvent which result in the formation of the lyophilic collide or by adding the electrolyte having the common ion, are called as the macromolecular collide। और जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसके बाद जो कोलाइड मिलेगा वो हमारा लायोफोबिक कोलाइड बनेगा। मींस क्यों, क्योंकि वो सॉल्वेंट ऐड करने से तो बने नहीं, वो तो इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से बने हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज भी होगा, अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल AgCl का हमने सस्पेंशन लिया, अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो टू वेज क्या डिफरेंट हो सकते हैं। हमने एक चीज लिखी है, बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन। कॉमन आयन का मतलब क्या है, सस्पेंशन मान लीजिए AgCl का है तो AgCl के अंदर कौन से दो आयन है, आपको दिख रहा है फार्मूले से, AgCl, Ag पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव, दो ही आयन है। मींस एक ऐसा सब्सटेंस आप डालेंगे जिसके अंदर कॉमन आयन मींस या तो Ag पॉजिटिव आयन हो या Cl नेगेटिव आयन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड कर दें AgNO3, तो AgNO3 अगर हम डाल दें तो बोलो Ag पॉजिटिव आयन हो गया, या हम डाल दें NaCl तो बोलो कॉमन आयन क्या हो गया, Cl नेगेटिव आयन कॉमन हो जाएगा। तो अब ये करते क्या है, ये ऐसा करते हैं कि आपका जो AgCl का जो सस्पेंशन है, हम वास्तविकता में आपको बता दें यहाँ पे है क्या, जो AgCl का जो सस्पेंशन हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि जो एक पार्टिकल है, देखो Ag हमने डायग्राम में दिखाया कि बीच में ये जो पार्टिकल्स थे उनके चारों तरफ बोलो कौन इकट्ठे हो गए, आपके इकट्ठे हो गए, बोलो कौन, AgNO3 डाला तो कॉमन आयन कौन था, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। सिमिलरली हर आपके पार्टिकल के चारों तरफ कौन इकट्ठा हो गया, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। अब क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर क्यों हो गए, क्योंकि रिपल्शन हो गई Ag पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो इस टाइप से हमें मिल गया एक कोलाइड, और उसे कहेंगे पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइड। देखो इस चीज को थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें डायग्राम के थ्रू। देखो दोबारा से आप एक बार देखें, डायग्राम की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। देखो हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि देखो ये जो बड़ा पार्टिकल है ना, देखो ये बड़ा पार्टिकल, देखो ये, देखो जो एक ब्लैक पार्टिकल जो दिखा है इसके अंदर मैनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे एक AgCl का पार्टिकल, दूसरा AgCl का पार्टिकल, देखो ऐसे, ये इस टाइप से, देखो तीसरा AgCl का पार्टिकल, देखो ऐसे इस टाइप से है ये आपके पास। अब हुआ क्या कि जब हमने इसमें AgCl डाला तो उस वक्त क्या हुआ, देखो ये जो बड़ा पार्टिकल है ना, इसका जो साइज है वो ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम है इस पूरे का।
हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो ये सस्पेंशन है इसके अंदर से जो एजीसीएल जो एक दूसरे के देखो ये नजदीक हैं, हम इनको दूर करना चाहते हैं। तो हमने इसमें क्या डाला, AgNO3 डाला। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने जस्ट एज्यूम कर लिया 3 AgCl के पार्टिकल्स मैंने दिखा दिए। 3 AgCl के पार्टिकल मान लीजिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनके इकट्ठे होने से जो बना हुआ था वो एक सस्पेंशन था। मीन जो ये एक ब्लैक पार्टिकल देखो, एक जो ये ब्लैक दिखा, जो मैंने अभी देखो सर्कल लगाया एक ब्लैक, ये कौन है, ये वही है जो मैंने देखो ये ऊपर दिखाया, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक है, इसके अंदर है एक जो ब्लैक बड़ा पार्टिकल है, उसके अंदर ये मैनी है, AgCl ये काफी है। हम चाहते हैं इन एजी जो अकेला एक AgCl है, ये एक क्या है, ये एक कोलाइड है। और जब कई AgCl इकट्ठे हो गए, उनके इकट्ठे होने से जो क्या था, वो सस्पेंशन था, ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉन का उसका साइज था। हमें इन AgCl को अलग करना है। कैसे करें इनको अलग, वाटर डाल के देखा, नहीं हुए अलग। फिर हमने क्या किया, अब डाला इलेक्ट्रोलाइट बोलो इसमें कौन सा डाला हमने, AgNO3। तो उससे क्या हुआ, उसमें कॉमन आयन था। तो हर एक AgCl के देखो, अब ये यहाँ पे देखो जो नीचे हमने दिखाया, देखो मैं आपको बता दूं, ये देखो जो नीचे दिखा रखा, ये कोई और नहीं, ये एक AgCl है। हम आपको फिर बता दें ये कौन है, ये एक AgCl है, ओनली वन AgCl, एक AgCl है ये आपका यहाँ पे। और सस्पेंशन में बोलो कौन था, ये ऊपर बोलो कौन था आपके पास, ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉन वाला, ये था आपके पास सस्पेंशन। बोलो कौन था ये यहाँ पे आपके पास, ये सस्पेंशन था, जिसके अंदर मैनी AgCl थे। और जब आपने AgNO3 डाला तो क्या हुआ, ये AgCl एक दूसरे से दूर हो गए। कैसे हुए दूर, क्योंकि हर एक AgCl के ऊपर कॉमन आयन क्या हो गया, स्टिक हो गया, उसको सराउंड कर लिया चारों तरफ से। और चारों तरफ से Ag पॉजिटिव आ गए, तो उससे क्या हुआ, दूसरे AgCl के चारों तरफ भी Ag पॉजिटिव आ गए। मींस नाउ देयर अकर्स द रिपल्शन इन बिटवीन दीज Ag पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव के बीच रिपल्शन, AgCl के पार्टिकल को हम दूर कर पाए। और इस टाइप से जो कोलाइड बना, क्योंकि अब इन कोलाइड के पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, सो कॉल्ड एज द लायोफोबिक कोलाइड, क्योंकि ये अकेले सॉल्वेंट डालने से ऐसे एक दूसरे से दूर नहीं हुए। अब अगर आप सॉल्वेंट डालेंगे, क्योंकि AgCl के बीच में क्या हो चुका है, अब गैप आ गया रिपल्शन की वजह से। अब उस गैप के अंदर अब सॉल्वेंट आप डालेंगे तो उस गैप को ऑक्यूपाई कर लेगा सॉल्वेंट, तो इस टाइप से वो सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस सॉल्यूशन को आप कहेंगे पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइड, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड दो टाइप के बनेंगे यहाँ पे, तो या तो पॉजिटिव, अगर आपके कोलाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। सिमिलरली अगर हम डालें यहाँ पे NaCl, तो बोलो क्या हुआ, AgCl के चारों तरफ बोलो कौन इकट्ठे हो गए आपके, कॉमन आयन कौन है अब की बार, NaCl में Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव आ गए। नाउ देयर अकर्स द रिपल्शन इन बिटवीन द नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच, तो भी आपके कोलाइड बन गए, लायोफोबिक कोलाइड यहाँ पे कहलाएंगे। और मोर करेक्टली नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो आपने क्या देखा कि व्हाट आर द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, द कोलाइड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग और द डिसोसिएशन ऑफ द लार्ज साइज पार्टिकल्स ईदर बाय एडिंग द सॉल्वेंट, तो आपके लायोफिलिक कोलाइड बनेंगे। और बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन, तो आपके लायोफोबिक बनेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइड भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉमन आयन का होना जरूरी है, आर कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड कौन है, जैसे आपने देखा होगा घर में आपके पास सोप है, आपने देखा है सोप को जब आप वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपने वाटर बकेट के अंदर वाटर लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा सोप डाला, आपने शेक किया, आपने देखा आपको सोप कहीं पे दिखाई नहीं दिया, आपको ट्रू सॉल्यूशन दिख रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसके अंदर क्या डाला, आपने मोर सोप डाला और ज्यादा सोप डाला, डालने से आपने उसको शेक किया, फिर क्या देखा, फिर आपने देखा झाग बन गए, फ्रोथ बन गए, फ्रोथ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मींस कोलाइड बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, मींस एसोसिएटेड कोलाइड ही है वो, द कोलाइड व्हिच गिव्स बोलो क्या, जो क्या दे दे बोलो। और इसके जो एग्जाम्पल थे, देखो ये मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैक्रोमोलिकुलर देखो जो कोलाइड थे उसके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, देखो प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, नाइलॉन, पॉलीथीन, ये आपके एग्जाम्पल थे इनके। तो हम डिस्कस कर रहे थे एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में। तो एसोसिएटेड कोलाइड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल थी, जो मैंने आपको सोप की एग्जांपल लेके अभी बता दी, कि द कोलाइड व्हिच गिव्स द ट्रू सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस मोर वाटर, बकेट के अंदर ज्यादा वाटर है, और आपके जो कोलाइड जो आपने डाला, सोप डाला, वो आपने कम अमाउंट के अंदर डाला, कम अमाउंट में डाला तो क्या मिला, ट्रू सॉल्यूशन। आपको दिखाई नहीं कि साबुन कहां चला गया, थ्रू आउट आपको एक जैसा दिख रहा है,
क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखता है। तो मींस द कोलाइड व्हिच गिव्स द ट्रू सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म। अगर आप ज्यादा साबुन डाल दे, कंसंट्रेटेड कर देते हैं उसको, तो क्या मिलेगा आपको, झाग मिल जाता है, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म आर कॉल्ड एज द एसोसिएटेड कोलाइड। आप उसे एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। अब एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई था, आप ध्यान से देखो, देख सकते हैं इस पर्सन ने क्या किया। देखो देखो सोप है इसके हाथ के ऊपर, आप बड़े ध्यान से देखो, है ना, फ्रोथ बने हुए हैं। फिर आप पानी डालते चले जाएंगे तो देखो झाग दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका बन चुका है। तो मींस इसका एग्जांपल सोप हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आखिर ये सोप ही कौन है। सोप कोई और नहीं, द सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मींस the if the COH group is present at one end of the long chain of carbon atom, this is called as the fatty acid। कार्बन की एक लंबी चेन है, उस लंबी चेन के एक एंड के ऊपर अगर COH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड को आप फिर फैटी एसिड कह देते हैं। और फैटी एसिड को आप सोल्ट में बदल दें, कैसे, बेस ऐड करके, NaOH ऐड करके, KOH ऐड करके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप एक एंड पे लगा हुआ है COOH, वो COOH नहीं रहेगा, वो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप NaOH डालेंगे COO नेगेटिव K पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप KOH डालेंगे तो अब वो सोल्ट बन जाएगा, किस चीज का, सोडियम का या पोटेशियम का। तो द सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड एज द सोप। आप उसे सोप कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है, जो जिगजैग फॉर्म में है, ये कार्बन एटम की लंबी चेन है, क्योंकि एवरी पॉइंट और द इंटरसेक्शन पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर जिगजैग चेन रिप्रेजेंट्स अबाउट द कार्बन एटम। इस पूरे के अंदर कार्बन एटम ही है। और एक एंड के ऊपर कौन प्रेजेंट आपको दिख रहा है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव या CO नेगेटिव K पॉजिटिव, बोथ आर दी सोप। मींस द सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड द सोप। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप सोप कहते हैं। ये टॉपिक हम पहले भी आपको टीच करवा चुके हैं। आपके सोप एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वहां पे इन डिटेल आप इसके बारे में, सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में देख सकते हैं। वहां पे आप उस लेक्चर को दोबारा से सुन सकते हैं। आप सोप के अंदर देखेंगे तो इट हैज टू पार्ट, वन इज द पोलर हेड, जो ये आपके COO नेगेटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव मींस आपके यहाँ पे पोल्स बन गए, नेगेटिव पॉजिटिव पोल मींस कॉल्ड एज द पोलर हेड। और जो बड़ा पार्ट है दैट इज द नॉन पोलर पार्ट। बोलो दूसरा कौन है, नॉन पोलर टेल। तो ये नॉन पोलर टेल यहाँ पे बन गई है। उसके बाद आप, अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, द सोप कैन बी रिप्रेजेंट एज, बोलो कैसे, पोलर हेड को हम देखो ऐसे सर्कल से दिखा देते हैं, और नॉन पोलर टेल को हम कुछ इस वेवी फॉर्म के अंदर दिखा देते हैं, जिगजैग फॉर्म के अंदर। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सोप। आपके सोप दो टाइप के हो सकते हैं, दैट में बी द सॉफ्ट और द हार्ड सोप। जो हमने लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ड सोप की भी यही रिप्रेजेंटेशन होगी, और सॉफ्ट सोप की भी यही होगी। क्योंकि जो सोडियम, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो सॉफ्ट सोप देता है, और पोटाशियम, सॉरी, जो सोडियम है इसका साइज छोटा है पीरियोडिक टेबल के अनुसार, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो जो सोडियम का साइज क्योंकि स्मॉलर है, इट विल गिव द हार्ड सोप, एंड द पोटेशियम का जो सोल्ट रेट विल गिव द सॉफ्ट सोप। तो इसके अंदर ये पोलर हेड हो गया जो डायग्राम में हमने दिखाया, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, पोलर बन गया। हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्शन दिखाएगा, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है ये। अदर वन कौन सा होगा आपका, क्योंकि हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फिलिंग का मतलब लविंग होता है, मींस वाटर लविंग पार्ट है, वाटर के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा ये। अदर वन इज द नॉन पोलर टेल, मींस ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वाटर के साथ हीट करेगा, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट नहीं है ये। तो ये हमने देखा सोप के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ दी सोप। यानी साबुन, हमारे कपड़ों के ऊपर गंदगी लग जाती है, हम जब नहाते धोते नहीं है तो हमारे स्किन के ऊपर डर्ट आ जाती है, तो उसको सोप की जो हम हेल्प लेते हैं, वो कैसे डर्ट को क्लीन कर पाता है, कैसे वो हमारी स्किन के ऊपर, हमारे क्लॉथ के ऊपर से जो डर्ट है उसको कैसे वो रिमूव कर पाता है। सो दैट हियर कॉल्ड एज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। तो इसमें हुआ क्या, आप बड़े ध्यान से देखें, देखो आपके पास एक डर्टी क्लॉथ है, उसके ऊपर हमने डर्ट लगी हुई दिखा रखी है। डर्ट है क्या, आपको पता है हमारी स्किन के अंदर से क्या आता है, पसीना आता है, स्वेट आता है। तो जो स्वेट आता है वो क्या है, ऑयली पार्ट होता है, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयली पार्ट है। उसके अंदर क्या आके चिपक गए, जो ऑयली पार्ट है उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया डस्ट को, जो इन्वायरमेंट के अंदर है। तो मीन्स क्या हुआ, आपके ऑयली पार्ट है उसके अंदर डस्ट आ गया, मीन्स ये नॉन पोलर होता है। तो डर्ट इज नथिंग, इट इज ए नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये। तो अब क्या करेगा, जो साबुन है उसके अंदर तो बल्कि दोनों पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और नॉन पोलर आपके पास टेल होती है, मींस हाइड्रोफोबिक आपके पास टेल होती है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है सोप का, वो क्या करेगा, जो सोप है वो कैसे अटैच होगा, कौन से पार्ट के थ्रू अटैच होगा इस डर्ट से। देखो आप, बेसिक प्रॉपर्टी होती है लाइक डिजोल्व्स लाइक, मींस पोलर डिजोल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर। तो कौन सा पार्ट डिजोल्व होगा डर्ट के अंदर, किस एंड के थ्रू सोप है वो आपके डर्टी क्लॉथ के ऊपर आके हो जाएगी अटैच। तो वो एंड कोई और नहीं, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट ही होगा, मींस द हाइड्रोफोबिक पार्ट। देखो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट के थ्रू जो सोप है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आप सूखा साबुन तो लेंगे नहीं,
इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर। और जो पोलर हेड हो गए, हमने देखो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, वहां पे आपके पास क्या रहेगा, वाटर रहेगा उस एंड के ऊपर। लेकिन सोप की जो अटैचमेंट हुई डर्ट के साथ, वो कौन से एंड के थ्रू हुई, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट के थ्रू हुई, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ द basic fact that is a like dissolves like means non-polar dissolves in non-polar, means the hydrophobic non-polar part of the soap attach themselves with the dirt on the cloth। और फिर उसके बाद क्या करता है, now the non-polar that the hydrophobic part of the soap start lifting the dirt, यानी उस dirt को उसने चारों तरफ से सराउंड कर लिया और उसको क्या कर दिया उसने, start lifting the dirt and finally the completely surround the dirt to form the mycelium। और जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है उसे माइसेल्स कहते हैं, मिसेल्स भी कह देते हैं। और उससे क्या हुआ, और अब उसके बाद जो आपका सोप है वो देखो डर्ट को बिल्कुल अलग ले गया, मिसल्स को देखो अलग ले गया, मींस एक स्टेबल इमल्शन बन गया, मींस ब्रिंग द डर्ट इनटू द डिस्पर्शन मीडियम, मींस द एक स्टेबल इमल्शन बन जाता बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन। मींस हुआ क्या था, हम आपको फिर बता दे, देखो जो वाटर है, अब डायग्राम के अंदर देखिए वाटर पोलर है, डर्ट नॉन पोलर है। मींस अगर आप वाटर को डायरेक्टली क्लॉथ के ऊपर डालते तो देयर इज ए सरफेस टेंशन, मींस डर्ट और वाटर के जो सरफेस है उनके बीच में एक टेंशन थी, वो आपस में एक दूसरे के अंदर डिसोल्व नहीं हो पा रहे थे। वाटर डर्ट को रिमूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि वाटर इज पोलर, डर्ट इज नॉन पोलर। मींस दोनों के सरफेस आपस में लाइक जैसे ऑयल को वाटर में डालते हैं तो उसमें डिसोल्व नहीं होता, क्योंकि ऑयल को जो वाटर के सरफेस पे डाले हैं तो ऑयल फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्यों, क्योंकि दोनों के सरफेस के बीच में टेंशन है, दैट कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन। मोर करेक्ट वर्ड हियर इज इंटरफेशियल। इंटर का मतलब इन बिटवीन, फेस का मतलब फेसेस के बीच में, सरफेसेस के बीच में टेंशन हो गई है, वाटर और ऑयल के सरफेस के बीच में टेंशन है। सिमिलरली यहाँ पे डर्ट और वाटर के सरफेस के बीच में टेंशन है, तो उस टेंशन को दूर किसने किया, दैट इज अ सोप, क्योंकि सोप एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दोनों पार्ट है। वो आपके डर्ट मींस नॉन पोलर में भी डिसोल्व हो सकता है, उसके अंदर पोलर हेड है वो पोलर पार्ट में भी डिसोल्व हो सकता है, इट मींस वो दोनों में डिसोल्व हो सकता है। मींस उसने क्या किया, वाटर और डर्ट को आपस में इंटरमिक्स करवा दिया, मींस इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज कर दिया। तो यही हमने बताया है आपको यहाँ पे, एंड ब्रिंग द डिस्पर्शियल मीडियम इनटू द फॉर्म ऑफ द स्टेबल इमल्शन बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन, बाय डिक्रीजिंग द इंटरफेशियल टेंशन व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, which was previously present in between the surfaces of the dirt and the water, and now which can be easily washed away in the stream of the water। वाटर हम लगातार डालते रहते हैं and makes the cloth clean, और इस टाइप से कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। So that all about the cleansing action of the soap। क्लींजिंग एक्शन अगर सोप का एग्जाम में आए तो आपको इस टाइप से लिखना होता है, इस टाइप से उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है। लेकिन अब आप एक देखें, जो यहाँ पे आपने देखा जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, तभी तो आपके जो साबुन था इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डर्ट को रिमूव कर पाया। जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है ये कोई और नहीं, अभी हमने 3 टाइप के कोलाइड पढ़े थे, वो कौन थे आपके, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, और लास्ट वन कौन था, एसोसिएटेड कोलाइड, और उसका एग्जांपल क्या था, सोप हमने देखा था। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी ये क्या है, ये मिसल्स बन गई। और इसके अंदर क्या हुआ, ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर एकदम बन गई, नो, आपने धीरे धीरे साबुन ऐड किया और साबुन ऐड किया और साबुन ऐड किया, फाइनली तब जाके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी होगी। मींस कुछ ना कुछ तो आपने साबुन डाला ही होगा। तो जब जो मिनिमम अमाउंट है साबुन की जो आपको डालनी पड़ी, जिसकी वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, जिसकी वजह से ये आपके मिसल्स बन गए, दैट मिनिमम अमाउंट कॉल्ड एज द क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कांस्टेंट। मिसल्स को बनने के लिए कम से कम कितनी अमाउंट आप डालेंगे एसोसिएटेड कोलाइड की, कितनी अमाउंट आपको साबुन की डालनी पड़ी, दैट कॉल्ड एज द सीएमसी, क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कांस्टेंट। सो हाउ विल यू डिफाइन इट, means the minimum concentration or the minimum amount of the associated colloid required for the formation of the micelles called as the CMC, आप उसे CMC कहते हैं। जो साबुन की CMC होती है वो क्या है, ये आपका डाटा है, उसी के बेसिस के ऊपर हम आपको बता रहे हैं, जो बुक्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा, 10⁻³ मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अगले टाइप के कोलाइड कौन से हो सकते हैं, दैट इज द लायोफिलिक कोलाइड और द लायोफोबिक। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले ही, जैसे जब हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के बारे में हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कैसे बने थे, जो आपके लार्ज साइज के पार्टिकल के डिसोसिएशन से, मीन सस्पेंशन के डिसोसिएशन से बने थे, प्रेसिपिटेट के डिसोसिएशन से बने थे। लेकिन कैसे, इधर बाय एडिंग द सॉल्वेंट तो लायोफिलिक कोलाइड बन गए थे, और बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन तो आपके लायोफोबिक कोलाइड बन गए थे, और इनके ऊपर चार्ज भी था, आपने देखा था। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रोसीड करते हैं और लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के बीच के डिफरेंस देखते हैं और इनकी डेफिनेशन भी। तो व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन द लायोफिलिक कोलाइड, क्योंकि जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो फर्स्ट, जब भी हम डिफरेंस देखते हैं किन्हीं भी दो चीजों के बीच, तो फर्स्ट पॉइंट हम डिफरेंस का क्या होता है, दैट इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है लायोफिलिक कोलाइड की, तो हाउ विल यू डिफाइन द लायोफिलिक कोलाइड,
the colloid which shows the more attraction with the dispersion phase as compared to the attraction in between their own particles called as the लायोफिलिक कोलाइड। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखा के सॉल्यूशन बना देते हैं वो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। और which shows no attraction with the solvent particles means dispersion phase। क्योंकि सॉल्वेंट वर्ड तो हम प्रॉपरली यूज करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के लिए, लेकिन आमतौर पे जब हम यहाँ पे बोल देते हैं और बोल भी देते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है जो सॉल्वेंट अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो वो सॉल्वेंट नहीं, वो हम डिस्पर्शन फेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो द कोलाइड विच शोज द मोर अट्रैक्शन विद द डिस्पर्शन फेज कॉल्ड एज द लायोफिलिक कोलाइड। जो आपके डिस्पर्शन फेज के साथ क्या वो अट्रैक्शन दिखेगा? नो। मैंने अभी क्या बोल दिया था? अट्रैक्शन करेगा नहीं। जो अट्रैक्शन करे तो वो तो आपके लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। एंड विच शोज नो अट्रैक्शन विद द डिस्पर्शन फेज कॉल्ड एज द लायोफोबिक कोलाइड। आप उसे लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। तो मींस क्योंकि अट्रैक्शन करते इसलिए सेकंड पॉइंट हमारा आ गया कि जो सॉल्यूशन है आपके लायोफिलिक कोलाइड का वो बड़ी आराम से देखो बनाया जा सकता है। मींस द सॉल्यूशन ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली। व्हाई? बिकॉज their solution can be prepared easily because their particle shows more attraction with the dispersion phase। जो dispersion phase है उसके particle के साथ वो ज्यादा attraction दिखाते हैं, इसलिए इनका solution आराम से prepare हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लायोफोबिक कोलाइड के बारे में। their solution cannot be prepared easily by adding the solvent, so some special method are required like that of the peptidization। उसे आप peptidization कहते हैं। उसकी डेफिनेशन वही थी जो पीछे हमने मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में देखी थी। पेप्टाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने देखा था जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड जो बनाया था, बोलो कैसे बनाया था आपने मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड? आपने सस्पेंशन को किस में कन्वर्ट किया था? लायोफोबिक कोलाइड में। कैसे कन्वर्ट किया था? बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा था? हैविंग द कॉमन आयन। तो वही डेफिनेशन किसकी बन गई? पेप्टाइजेशन की। मींस द प्रोसेस इन विच द सस्पेंशन गेट कन्वर्टेड इनटू, बोलो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है लायोफोबिक कोलाइड में बाय एडिंग ऑफ द suitable electrolyte। suitable electrolyte का मतलब the electrolyte having the common ion is called as the peptidization। उसे आप पेप्टाइजेशन ही कहते हैं। और उसके द्वारा चार्ज आ जाता है। तो आपने नेक्स्ट पॉइंट इसी बेसिस के ऊपर, जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं देयर पार्टिकल्स हैव लिटिल और द नो चार्ज, मींस नो चार्ज ही कहेंगे हम। और लायोफोबिक कोलाइड के ऊपर दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं, दे मे बी द पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइड और मे बी द नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी बेसिस के ऊपर जो आपके लायोफिलिक जो कोलाइड है दे गिव्स द स्टेबल सॉल्यूशन, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे शो द मोर अट्रैक्शन विद द डिस्पर्शन फेज। जो डिस्पर्शन मीडियम है उनके पार्टिकल के साथ ये ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं, इसलिए इनका सॉल्यूशन आराम से बन जाता है, मींस इनका सॉल्यूशन स्टेबल होता है। लेकिन जो सॉल्यूशन है लायोफोबिक कोलाइड का वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इनके पार्टिकल्स डिस्पर्शन जो मीडियम होता है, डिस्पर्शन जो फेज होता है, डिस्पर जो फेज होता है उसके साथ अट्रैक्शन नहीं दिखाते, इसलिए इनका सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होता। ये रिवर्सिबल कोलाइड भी है, मींस बाय चांस आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन आपने ओपन में रख के आप कहीं पे चले गए और आपने देखा कुछ दिनों के बाद आप वापस आए, जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो सकता है, वेपराइजेशन प्रोसेस से वो उड़ सकता है, आपके पास दोबारा से सॉलिड लायोफिलिक कोलाइड, आप जस्ट क्या करेंगे, आप आएंगे दोबारा से उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जस्ट शेक करेंगे और एकदम आपके पास फिर से तैयार हो गया लायोफिलिक कोलाइड। मींस वो रिवर्सिबल है, means they are also called as the reversible colloid because their solution can be prepared easily again by just adding the solvent in it। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड के साथ ऐसा नहीं। आपने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पेप्टाइजेशन प्रोसेस को यूज किया और उसके द्वारा आपने सॉल्यूशन को बड़ी मुश्किल से बनाया बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन। और जब उसके पार्टिकल दूर हो गए थे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन या नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन, क्योंकि दो टाइप के हो सकते हैं पॉजिटिव और द नेगेटिव, फिर आपने सॉल्वेंट ऐड किया और उसके बाद आपका यानी इनका सॉल्यूशन आप इजीली नहीं बना सकते हैं, दे आर इरिवर्सिबल कोलाइड होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि कोएगुलेशन प्रोसेस तभी चलती है वही दिखा सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज हो, मींस लायोफिलिक कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं दे कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल हैव नो चार्ज और द लिटिल चार्ज। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और द नेगेटिव, सो दे कैन शो द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। जैसे आपने देखा होगा जो आपके सी होते हैं उनके जो एंड होता है, जहां पे जो नदियां हैं, नदी जो रिवर्स होती हैं, द पार्ट वेयर द रिवर मीट्स टू द सी, देयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेशन होता है। डेल्टा कैसे होता है कि जो आपका सी है, समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर सॉल्ट है, सॉल्टिश वाटर होता है, मतलब सॉल्टिश मींस NaCl है, NaCl मींस सॉल्ट है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो जो आपके सी के जो आपके रिवर्स आई जो वो मीट करती हैं एट द बैंक ऑफ द के जो किनारा है समुद्र का वहां पे, तो जो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सैंड है। सैंड क्या है? सैंड इज नथिंग बट इट इज द लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड है।
और लायोफोबिक कोलाइड दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और द नेगेटिव। तो जब सैंड आपके जो समुद्र है उसके जस्ट कांटेक्ट में आती है तो वहां पे कोएगुलेशन प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कौन ऐड हो गया, नाउ इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आ गई, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आने से कोएगुलेशन हुई और डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये डेल्टा फॉर्मेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, द डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच प्रोसेस, तो आप किस पे टिक करेंगे, कोएगुलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। कोएगुलेशन किसके बीच हुई, आपके सैंड के बीच, जो सैंड आती है, जो आपकी मिट्टी आती है, जो क्ले आती है। क्ले क्या है, क्ले कोई और नहीं, वो एक लायोफोबिक कोलाइड है। और इलेक्ट्रोलाइट कहां से आया, वो सी के अंदर से आया, तो उनके बीच में आपकी इंटरेक्शन हुई और जिसकी वजह से एक प्रोसेस चली कोएगुलेशन। तो इसलिए हमने ये इसका एग्जांपल आपको दिखाया। लायोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं, दे कैन बी कोएगुलेटेड इजीली। आपने देखा होगा जब आप शेविंग कर रहे हो तो आपका जो स्किन होता है यहाँ पे कट लग जाता है, जब आपके कट लगा तो आप क्या करते हैं, आप फिटकरी लेते हैं, फिटकरी को आपकी स्किन के ऊपर देखो आप ऐसे रब करते हैं, रब करने से क्या हो गया, आपने देखा जो खून था वो आपका जम गया। जो जमने का मतलब क्या है, मींस कोएगुलेशन हो गई। कोएगुलेशन मींस आपका जो ब्लड था, ब्लड में कौन आया, हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन भी है ब्लड में। हीमोग्लोबिन क्या है, वो एक लायोफोबिक कोलाइड है। फिटकरी क्या है, फिटकरी के अंदर सॉल्ट है, मींस वो क्या है, फिटकरी, फिटकरी एक लायोफोबिक कोलाइड था आपके, सॉरी वो एक इलेक्ट्रोलाइट था। हीमोग्लोबिन क्या था ब्लड के अंदर, वो एक लायोफोबिक कोलाइड है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन क्या है, एक लायोफोबिक कोलाइड। और जो फिटकरी है वो क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जब आपके जो कोलाइड है लायोफोबिक कोलाइड, जो हीमोग्लोबिन उसके कांटेक्ट में आया तो देखो खून जो जम गया वो एक कोलाइड बन गया। तो जो कोलाइड आपके, सॉरी वो सस्पेंशन बन गया। और जो प्रोसेस है वो क्या कहलाई, वो कोएगुलेशन कहलाई। मींस हम आपको ये बता दें, जब कोएगुलेशन प्रोसेस चलती है तो उसके द्वारा जो सब्सटेंस बनता है वो आपके सस्पेंशन बनते हैं। बोलो क्या बनते हैं, सस्पेंशन। तो बताओ पेप्टाइजेशन जो प्रोसेस होती है, जो आपकी, सॉरी ये जो कोएगुलेशन जो प्रोसेस होती है, इस कोएगुलेशन प्रोसेस के दौरान जो आपका सब्सटेंस बनता है वो आपका क्या बना, दैट इज सस्पेंशन। बोलो कौन बना आपका, सस्पेंशन। देखो फिर से मैं रेक्टिफाई कर देता हूं इस चीज को। जब कभी भी आपकी ये जो प्रोसेस चलती है जिसे आप कोएगुलेशन प्रोसेस कह रहे हैं, आपके पास पहले लायोफोबिक कोलाइड होता है। लायोफोबिक कोलाइड कौन, रिवर के अंदर लायोफोबिक कोलाइड कौन था, क्ले। हमारे ब्लड कट हुआ तो लायोफोबिक कोलाइड कौन है, हीमोग्लोबिन। वो किसके कांटेक्ट में आए, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आए, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आए। इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आने से अब जो प्रोसेस चली वो कौन सी चली, कोएगुलेशन चली, पेप्टाइजेशन नहीं चली। पेप्टाइजेशन से तो कोलाइड बनता है, पेप्टाइजेशन से तो कोलाइड बनता है, लायोफोबिक कोलाइड बनता है, पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइड और द नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइड। कोलाइड बन चुका है हमारे पास। अब जो कोलाइड है उसके अंदर अगर हम और ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना शुरू कर देंगे तो जो बना हुआ कोलाइड है वो फर्दर अब सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लायोफोबिक कोलाइड को सस्पेंशन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है आप उसे कोएगुलेशन कहते हैं। आप उसे क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड एज द कोएगुलेशन। नेक्स्ट हम अब देखते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा लायोफोबिक जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लायोफोबिक कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है। तो चार्ज ना होने की वजह से देखो बीच में जो हमने ग्रीन टाइप के पार्टिकल्स दिखाए, आप ध्यान से देखें वो माइग्रेट ही नहीं हो रहे। देखो ये बैटरी है, ये आपका कंटेनर है जिसमें आपके लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स हमने डाल रखे हैं। एक एनोड है जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है ये कैथोड हमने दिखा दिया यहाँ पे। अब क्या हुआ, आपकी देखो ये प्रोसेस चली, प्रोसेस चलने से क्या हुआ, देखो लायोफिलिक कोलाइड के पार्टिकल जो ग्रीन कलर के हमने एरो लगा के दिखाया, ये वहीं की वहीं रह गए, इनकी माइग्रेशन हुई ही नहीं। दे कैन नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देयर पार्टिकल हैज द नो चार्ज, इनके पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि दूसरे टाइप के जो पार्टिकल्स है देखो वो कौन है, लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफोबिक कोलाइड कौन से पार्टिकल्स हो गए, दे कैन माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देयर पार्टिकल हैव द पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन हो गए, जो आपके नेगेटिव एंड की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइड, और जो आपके पॉजिटिव एंड की तरफ एनोड की तरफ आपके जा रहे हैं बोलो वो कौन है, वो आपके नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइड होंगे, वो आपके बोलो कौन होंगे, नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइड। और ये जो प्रोसेस यहाँ पे चली उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, दैट कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलो कैसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द पॉजिटिव और द नेगेटिवली चार्ज लायोफोबिक कोलाइड गेट माइग्रेटेड towards their respective electrode in presence of the electric field is called as the electrophoresis। मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपने जब बाहर से बैटरी ऐड कर दी, आपने करंट पास किया, तो उससे क्या हुआ, जो पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइड है तो दे गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड, और आपके नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइड है दे गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड। ऑन दैट बेसिस द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस फर्दर ऑफ टू टाइप्स मींस द एनाफोरेसिस और द कैटाफोरेसिस। मींस एनोड की तरफ कौन आपके नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है वो किधर गए, द प्रोसेस इन विच द नेगेटिवली चार्ज लायोफोबिक कोलाइड गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मींस टुवर्ड्स द anode, so process called as the anaphoresis. Similarly, the cataphoresis, the process is
the process in which the positively charged lyophobic colloid particles get migrated towards the respective electrode. Respected means towards the negative electrode, so called as the towards the cathode, so called as the cataphoresis. तो इस टाइप से आपने देखा लायोफोबिक जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को शो करते हैं, दे अंडरगो द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, और लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को शो नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके लायोफिलिक कोलाइड होते हैं दे कैन नॉट शो द टेंडल इफेक्ट, और लायोफोबिक जो पार्टिकल होते हैं दे कैन शो द टेंडल इफेक्ट। सो व्हाट इज द टेंडल इफेक्ट हियर? आप ध्यान से देखें, पहला कंटेनर आपने लाइट पास की तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुई। सेकंड के अंदर आप देखें, देखो पार्टिकल्स हमने ऐड कर दिया, वो कौन था आपके लायोफोबिक कोलाइड पार्टिकल था, और फिर लाइट पास की तो क्या हुआ, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई, देखो लाइट पास करते ही अब दोबारा से देखें ये सब्सटेंस हमने डाला, रिजोल्व किया, और उसके बाद लाइट पास की, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई। अब ये देखो क्या हुआ, देखो जब हमने लाइट पास करते हैं तो ऊपर देखो एक पर्सन है आपको दिख रहा है, और वो माइक्रोस्कोप के थ्रू एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देखो देखो आप ध्यान से देखें लेफ्ट साइड से हमने देखो क्या दिखा रखी है, देखो यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, पर्सन देखो ऊपर से देख रहा है थ्रू द ये माइक्रोस्कोप है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। means when light is passed in the colloidal solution and is observed through the microscope at an angle of 90 degree, then a cone is obtained, then a bluish cone is obtained। ये कौन बन गया, देखो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में आप जानते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में आप जानते हैं ये कौन की स्ट्रक्चर है, जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसकी भी कौन होती है, देखो कौन बन गई जो हम ऊपर से देख रहे हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ द कौन कॉल्ड एज द टेंडल कौन एंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज द टेंडल इफेक्ट। तो जो स्कैटरिंग प्रोसेस वाला जो इफेक्ट है इसे आप टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाए तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जो भी आपको बताया बिल्कुल उसी फॉर्म में आप लिखेंगे। मींस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देखो मैंने दिखाया अभी लाइट की डायरेक्शन, देखो मैंने एरो से दिखाया लाइट, ऑब्जर्वेशन करके मैंने लिखा जो हम देख रहे हैं, तो मींस एंगल कितने का बन गया, देखो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो मींस यही डेफिनेशन बन गई। टेंडल इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, मींस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इज ऑब्जर्व्ड, कहां से ऑब्जर्व किया, is observed through the microscope at an angle of 90 degree, then a bluish cone is obtained called as the Tyndall cone and the effect is called as the Tyndall effect। और ये हुआ क्यों, ये Tyndall effect क्यों हुआ, due to the scattering of the light by the लायोफोबिक कोलाइड पार्टिकल्स, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने लाइट को स्कैटर कर दिया, स्कैटरिंग हमें दिखाई दी, यहाँ पे ऑब्जर्व हुई, और इस स्कैटरिंग इफेक्ट को हम कहते हैं टेंडल इफेक्ट। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ टेंडल इफेक्ट, कोई आपसे पूछे, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की स्कैटरिंग की वजह से ये टेंडल इफेक्ट हुआ है। तो पहले वाला देखो जो कंटेनर है लेफ्ट साइड में, उसमें देखो आप लाइट पास करें कुछ दिख ही नहीं रहा, इट मींस उसमें कौन से पार्टिकल थे जो आपने डाले थे, वो लायोफिलिक कोलाइड के पार्टिकल्स आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं इसमें, देयर सॉल्यूशन विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। देखो ये बड़ा बेसिक फैक्ट है, आपने सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट के अंदर जब आपने किसी बाहर से दूसरे सब्सटेंस को डाला जो लेस अमाउंट में आपने डाला, तो उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको ऐड कर रहे हैं, देखो वाटर की अपनी विस्कोसिटी है, आप दूसरे सब्सटेंस को ऐड करेंगे और ऐसा सब्सटेंस उसमें डालें विच शोज मोर अट्रैक्शन विद द दैट पर्टिकुलर डिस्पर्शन मीडियम, जिसे हम बार बार वाटर कह रहे हैं। आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो हम ट्रू सॉल्यूशन के केस में यूज करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में हम डिस्पर्शन मीडियम यूज करते हैं। तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम है जिसे हम सॉल्वेंट बार बार यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह हम आमतौर पे यूज कर लेते हैं। तो जो भी आपका ये सॉल्वेंट है, जो ये डिस्पर्शन मीडियम है, इसके अंदर जब हम लायोफिलिक डालते हैं, बिकॉज लायोफिलिक कोलाइड आर दोज पार्टिकल विच शोज मोर अट्रैक्शन विद द डिस्पर्शन मीडियम। अट्रैक्शन मींस उसकी विस्कोसिटी को वो बढ़ा देते हैं, तो मींस आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मींस लायोफिलिक कोलाइड को जब आप किसी डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डालते हैं तो वो उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन आपने देखा था लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल तो सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन ही नहीं रखते, अट्रैक्शन नहीं रखते तो क्या होगा, वो उसकी सॉल्वेंट के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं डालेंगे। मींस जब अट्रैक्शन होगी, कोई चीज उसमें इंटरमिक्स होगी जाके, तभी तो वो उसकी विस्कोसिटी को चेंज करेगी, तभी तो उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करेगी। लेकिन लायोफोबिक पार्टिकल्स के ऐड करने से विस्कोसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम रहती है। सिमिलरली सरफेस टेंशन को देख ले, जो लिक्विड का जो सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर क्या है, बोलो एक टेंशन है, सो कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। The surface tension is the property due to which the liquid surface behaves like a stretch membrane। देखो इसका जो आपको सरफेस भी देखो बड़े ध्यान से देखिए कैसा दिख रहा है, कनकेव दिख रहा है, कनकेव दिख रहा है, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो किससे अटैच है, अंदर की साइड वो लिक्विड पार्टिकल से अटैच है, बाहर की तरफ गैसियस है, वेपर वेपर आपके पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे गैसेस पार्टिकल होंगे। तो इनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्शन ज्यादा है, गिलास के साथ भी अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में, सोलेंट पार्टिकल के साथ भी अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में,
सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी कहलाती है ये, जिसकी वजह से ये आपका सरफेस बना, स्ट्रेच हो गई ये मेम्ब्रेन। जब आपने डाला इसके अंदर आपके लायोफिलिक कोलाइड, तो उसने क्या हुआ, उसने सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन दिखाई, जिसकी वजह से जो सरफेस के अंदर जो टेंशन थी वो डिक्रीज हो गई। बिकॉज नाउ दीज particles, now these lyophilic colloidal particles, they are now present also on the surface, वो सरफेस के ऊपर भी आके प्रेजेंट हो गए, मींस पॉजिटिव एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, पॉजिटिव और द नेगेटिव। तो मींस आपके क्या हो गई, सरफेस टेंशन यहाँ पे डिक्रीज हो गई। तो आपके दे डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन, उसकी डिक्रीज जो पहले सॉल्वेंट की सरफेस टेंशन थी अब उससे कम हो जाती है। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड के बारे में हमने देखा था, दे तो वो उसमें इंटरमिक्स ही नहीं होते, सो सरफेस टेंशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, वो सरफेस टेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड के बीच में थे। तो हमने ये क्लासिफिकेशन देखी आपके कोलाइड्स के बारे में भी। So that all about our today's part of the surface chemistry. Thank you.